All right, Sairam to everyone. Sairam, sir. Sairam, sir. Sairam, sir. So this is 11th class, right? Yes, sir. All right. Yes, sir. So I welcome you all after the summer break and hope everybody is fine and fit along with their parents and family. And as we are having the first interaction class in this session, I will request you to all just open your windows and just be interactive with me so that I can be able to identify you by face, right? If you don't have any problem, then. And if you have any problem, then it's okay. Otherwise, I would like that everybody should be on the window so that I should be able to interact in a better way. Thank you, Sambhav. Sorry, Subham Bhargav. Divyansi, I can see. Sakshi, I can see. Very good. Then this Saurya, I can see. Very nice. Piyush Haldar is also here. Very nice. Karthik is here. Sunidhi is here, right? Anup Mishra is here. Yes. Then Simon is here. Yogendra Meena ji is here. Very nice. Eklavya. Welcome, Eklavya. Then Sakshi. Then Isa. Sairam Bitu. Sairam. Soumya. Sachi. And then Anjan. अंजन शर्मा इज हियर. बाप रे, इतने बड़े बड़े दिख रहे हो यार मुझे. वेरी नाइस. देन आर्ची, कौन है? अर्चित. अर्चित इज हियर. ऑल राइट, ऑल राइट. एवरीबडी इज पोपिंग अप. ओके. देन किसी का नाम तो नहीं छूट गया? इसिका का नाम ले लिया ना मैंने? हाँ, इसिका इज हियर. राइट, राइट. Now, why you have taken this physical education? Can anybody speak? The first question. And see, everybody is should feel free to discuss. हाँ? वो मिश्रा सर 10th क्लास के साथ जो डांटने वाले और कान घुमाने वाले जो थे ना, अब वो इज ओवर नाउ. Now you are in 11th class and you are little more matured and you know your responsibilities. You know how to carry forward in the future's life. So that way you become more mature. So you have to be little more interactive, more participatory, right? कहीं भी अपनी बात को दबा के नहीं रखना है. जो मन में आता है और जो सवाल मैंने पूछा है उसका आंसर अगर आता है तो विंडो ओपन करके अपना आंसर दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि एवरीबडी इज ऑन द विंडो. सारे लोग मेरी विंडो पे हैं अभी. ठीक है. तो my question, first question, which I always used to ask, why you have elected physical education as a subject? Is there anyone to answer? Yes, your turn. Feel free to come in. सर सर हमने Yes, फिजिकल Karthik. एजुकेशन सर हमने फिजिकल एजुकेशन इसलिए लिया है सर बिकॉज सर कि पहली चीज़ ये हुई कि हमारी जो सेहत है वो मतलब इम्पोर्टेंट है. तो सर फिजिकल एजुकेशन में हम लोग थोड़ा अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस टाइम में थोड़ा हमें हेल्प भी मिलेगी मतलब उससे. और उसके अलावा जो सर हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. और जो फिजिकल एजुकेशन है हमें हेल्प करेगा उनमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए. और उसके साथ साथ इसमें हमें मतलब सर हम लोग इसमें बहुत मस्ती भी करेंगे सर आपके साथ सर. इसीलिए मस्ती सर भी करेंगे ये मतलब सर इसका मतलब कार्तिक ये कहना चाह रहा है कि मिश्रा सर मस्ती भी कर लेते हैं. सर आप सर बढ़िया सर. तो इसका मतलब जो मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि मिश्रा सर से सारे डरते हैं, वो वाला सारा चीज गड़बड़ है, गलत है वो. सर सर अब सर मतलब थोड़ा तो मतलब होना चाहिए ना सर कि मतलब हमें थोड़ा मतलब रहना चाहिए सही से सर. रहना चाहिए. चलो, गुड. आई अप्रिशिएट योर थॉट. आई अप्रिशिएट योर थॉट्स. वेरी नाइस. एंड एनीबडी एल्स? Please come out.
Please come out with the thought. Yes, Eklavya. Yes, sir. Why you have taken Sir, physical same education? सर सेम थॉट है सर कि एक तो प्रैक्टिकल चीज है, तो सर इसकी वजह से कि सर हम अपनी बॉडी के बारे में भी जान सकते हैं, और सर इसके बाद कि अभी जो टाइम चल रहा है सर उसमें हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को एकदम नेग्लेक्ट करते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो सर इसके वजह से हमने ये लिया है कि सर इससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में मतलब क्या क्या होता है, और हम लोग को अपनी बॉडी को कैसे फिजिकली फिट रख सकते हैं, सर इसलिए लिया है। Very good, very good, very good. Yes, Sakshi. Yes, sir. Sir, Yes. because the subject is very interesting and informative as well, and it is very interesting as we are getting knowledge about our health and what we are doing from the starting playing games and getting knowledge about these things only. It will help a lot. Sir, your mic is mute. Yes, Piyush. Yes, Piyush. सर मैंने फिजिकल एजुकेशन इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन तो जो है बहुत मतलब ज्यादा बड़ी मतलब ज्यादा कम उम्र में ही बहुत नाजुक सी हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल छोटे बच्चे ही मतलब ज्यादा दौड़ने पर थक जाते हैं। तो मैंने अपने आप को फिट बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन लिया है। Okay, okay, good. See, I just need your opinions, right? No opinion is wrong, right? Remember that. Whatever you are saying, that you are saying with your prospects, right? तो मैं चाहूंगा कि और भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। Karthik has spoken, Eklavya has also spoken, Sakshi has spoken, and then the Piyush also. Now, next, yes, Devansi. Sir, physical education gives us practical knowledge compared to other subjects in science stream, and maths, chemistry, physics give such a hectic schedule to, and we need such subjects like PE to relax our mind, to Okay, uh, to do something which will help our body as well. very nice, wonderful. So Devyansi also got this opportunity. Now, next one. Anybody else? Yes. Abhishek, Bhargav, I can see. Abhik Jain. Okay, Sambhav. Yes. Yes, Bhargav sir. सर हमने अभी तक सर स्पोर्ट्स के बारे में और सर फिजिकल एजुकेशन को सर हमने ऐसे बाहर से ही देखा है कि सर पीटी वगैरह करते थे और सर स्पोर्ट्स में खेलते थे सर। अब पी लेने पे सर हम उसके बारे में और डीप में जा पाएंगे कि कैसे क्या रूल्स रहते हैं और कैसे आपको पी आगे भी हेल्प करता है। और सर ये सर जैसे जो कंप्यूटर साइंस हो गया और सर ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये इन सबसे अलग हो जाते हैं सर, क्योंकि इसमें हम सर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं। ओके, चलो गुड। नेक्स्ट। देखो वॉलंटियरिज्म है, इसमें सबको बोलना है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आई मेक ए पर्सन ए गुड लीडर, and how you can become the good leader until unless you participate. So I give all opportunities to be the part of discussion. Everybody has to say something so that I should get that idea what my students feel about that physical education as a subject of study. Yes. अरे बाप रे, कोई नहीं आ रहा है सामने। इशिका जोशी, हेलो हेलो। अंजन शर्मा,
Nobody like to speak? Tanya Gupta? Yes, Hello, sir. are you there? Are you Yes, there? sir. Yes, Okay. sir. Yes. Go ahead. Sir, I have taken PE as I'm more interested in PE as compared to Hindi or CS. And also, as Divyanshi said, that it relaxes our mind. And as I have taken commerce, so I have, तो सर मतलब कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में हमें वो फिजिकली हम सारी चीजें कर सकते हैं, और बाकी फिर हमें इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है हमारे फ्यूचर में पीई से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी। ओके, गुड। और कोई कुछ इसके अलावा जो बाकी साथियों ने बोला है उसके अलावा, इफ यू हैव एनी अदर आइडिया? See, why I'm asking? There is a reason behind that. I'm asking this question that I should at least get that feedback when the children are joining my class, why they are coming to this class and what they are expecting from me to make you understand about the subject, and what are the advantages are there in this subject when I go for this study for 2 years, right? So I should be, वो कहते हैं ना, एज ए ग्राहक कि मैं कौन सा सामान खरीदने वाला हूं, मुझे मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से कंटेंट्स मिले हुए हैं, उसकी एक्सपायरी की डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो किस कंपनी का बना हुआ है। तो एज ए अवेयर्ड ग्राहक, एज ए अवेयर्ड स्टूडेंट, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट। है, बाद में अफसोस ना हो कि अरे मैंने तो ये गलती कर दी थी और मैंने ऐसा कर दिया था, या फिर ये कि नहीं मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था और मैंने सही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जो मैं चाहता था, दैट आई हैव गॉट। कार्तिक, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। सो इसके अलावा और किसी के पास में कोई थॉट्स हो, दे शुड कम आउट। जतिन साहू इज देयर, अभिषेक जैन इज देयर, अभिषेक कौन है, ये पूरा नाम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसका अभी क्योंकि आधा आ रहा है। लक्ष्य इज हियर एंड यस काबरा इज हियर। नोबडी इज स्पीकिंग। ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अच्छे बेटों की तरीके से, तभी मजा आएगा इस क्लास में, है ना। बाकी में तो फिर ये कि डिस्कशन ये सब चलता रहेगा, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड, व्हाई यू हैव टेकन द physical education as a subject. Now you all have given that answer that you want to know, you want to study this physical education because you are interested in this physical activities and you also learn something new. Now see the uniqueness of this subject. What I feel as a teacher, this is the subject which talks directly to yourself. To know about yourself, अपने बारे में जानना। अब मेरी बाइसेप्स कहाँ है, कौन बताएगा मुझे बाइसेप्स कहाँ होती है? सर यहाँ पे। कहाँ पे? ओके, यहाँ पे, ऑल राइट, यहाँ पे होती है बाइसेप्स, ऑल राइट, गुड। अच्छा, वो टीबिया कहाँ होती है? सर क्या? टीबिया बोन का नाम है सर। थाई की जो सर ये थाई होता है ना अपना, इसका बिगेस्ट बोन टिबिया होता है। कार्तिक के अलावा कौन बताएगा मुझे? अच्छा, स्केपुला कहाँ होता है? सर ये वाली नहीं पता सर, एक मिनट और बोलिए। स्केपुला, सर ये वाली नहीं पता। स्केपुला, कोई बात नहीं। फिर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे वो एडवांटेजेस क्या देती हैं। ऐसा तो नहीं मिश्रा सर जो हैं वो 2 राउंड कार्तिक एकलव्य को इसलिए ज्यादा भगाते हैं कि वो थक जाए, ऐसा तो नहीं है, पनिशमेंट तो नहीं है। बट जब मैं 2 एक्सरसाइज ज्यादा करने को बोलता हूं तो उसका एडवांटेज बॉडी पे क्या आता है और किस मसल्स ग्रुप पे आता है, किस बॉडी के सिस्टम पे आता है, दिस वी कम टू नो, right? So physical education is a subject which has been evolved like anything,
And in the present pandemic situation, where everybody is talking about to have the better immunity, how that immunity can be developed? टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स के सेल करने पे, उनको खाने से इम्यूनिटी बढ़नी है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. My body is having the unique system where that body develops that resistance power when I move a lot. जब मैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करता हूं तो मेरी बॉडी क्या करती है, उसमें इम्यूनिटी क्रिएट करती है, और उसमें फिजिकल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है. इट्स ए सब्जेक्ट विच क्रिएट अवेयरनेस amongst the students or the pupil to participate in some or other form of activities. Right? Now in the present scenario, India is having the youngest largest population. ये सब्जेक्ट क्यों इतना अच्छे से बाहर निकल के आया है, इसको बनाने की सीबीएसई को जरूरत क्यों पड़ गई? इतने सारे सब्जेक्ट लाइनअप हैं और ऐड हो रहे हैं अभी न्यू पैंडेमिक के साथ में, और भीड़ लगती जा रही है सब्जेक्ट्स की. बट व्हाई दिस सब्जेक्ट्स बिकम सो इंपॉर्टेंट? द रीजन इज इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन. जो डेमोग्राफिकली जो एडवांटेज है हमको, अगर हमने अपने उस यंग जनरेशन को अवेयर नहीं किया अबाउट द हेल्थ एंड फिटनेस, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अभी हमने ये देखा कि जब कोरोना की लहर चल रही थी तो हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल हो गए थे, बिकॉज द मैक्सिमम पीपल वर सफरिंग विद द इन्फेक्शंस. तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पे लोड आ गया था. हमारे पास में इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन को टैकल कर पाए अगर वो सिक फील करते हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. तो ये सब्जेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे आगे आया है, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस amongst the people so that they should participate in some or other form of physical activities, and at the same time they should also know about their own self. आपको मालूम है कि जो एक कहावत बोली जाती है, क्या कहावत बोली जाती है? कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं. हाँ या ना? ये कहावत ही है या फिजियोलॉजिकली भी सही है? सही है. सर कैसे? सही है. एक्सप्लेन. कैसे? एक्सप्लेन. सर लाइक जो स्पोर्ट्समैन होते हैं सर, वो मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो काय के लिए कि अपने देश को कुछ दिलवा दे. पूरे मतलब धूप में भागेंगे, पूरे मतलब पूरे अपनी मतलब हाँ संभव सब काम कर देते हैं. सर आपने एक बार क्लास में बताया था कि सर जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं सर, उनका हार्ट जो जल्दी जल्दी ब्लड पंप करते हैं, सर उनका हार्ट सही में स्ट्रेच होकर बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत. वेरी गुड. तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है, जैसे शुभम ने बोला ना बीच में. तो हार्ट का साइज वास्तव में स्पोर्ट्स का जो रेगुलर एथलीट्स होते हैं, जो ट्रेंड एथलीट होते हैं, उनके हार्ट का साइज क्या होता है? नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंपिंग मोटर है हमारी, जो पानी ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर पे फेंक रही थी, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो सेकंड फ्लोर पे भी जाएगा पानी. दैट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बिकम मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट. राइट? तो ये इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस हमारे उसमें आएंगे. ठीक है? तो अब इसमें बात ये आती है कि फिजिकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस यंग जनरेशन को राइट डायरेक्शन देने में, वेयर they participate, they understand their body, they understand their healthy habits, they understand healthy hygienes, they understand how they can look after themselves. मैं टिम्बकटू की बात नहीं है सब्जेक्ट में कि फलाने ने ऐसा कहा था ना. इसमें तो वो कहते हैं ना, मेलोडी खा और खुद जान जा. वो आती है ना मेलोडी का एडवर्टाइजमेंट. उसमें क्या है एडवर्टाइजमेंट में? क्या बोलते हैं? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, है ना? तो फिजिकल एजुकेशन भी वही सब्जेक्ट है जिसमें जब आदमी करता है, देन दे रियलाइज व्हेन दे पार्टिसिपेट सम और अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज एंड व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स आर कमिंग ऑन द बॉडी, हाउ बेटर आई एम फीलिंग. दैट ऑल इफेक्ट्स कैन बी रियलाइज ओनली
when you eat that what? Hard work. मेलोडी नहीं, मेलोडी खाएंगे तो फिर दांत खराब हो जाएंगे. Melody is what? Hard work. And when you do that exercises, when you participate in some or other form of activities, either it is dance, either it is drama, either it is aerobics, either it is games, either it is self-defense exercises, either it is martial art, any form of activity, either it is yoga. If you are participating in that, you become more fitter, more healthy, and you are able to face not only physical challenges, but you get prepared emotionally, mentally, socially, and also uplifted spiritually. So that is the strength of this subject, right? Now, anything you want to ask about this subject, I'm always there to help you out. Anybody, any question? Only Karthik and Eklavya has opened that window. Rest are at in the curtain. मैं तो चाहूंगा सारे लोग आज कम से कम खोल के रखें विंडो को. यस, कम से कम 2 लोगों ने रिएक्ट किया क्विकली. वेरी नाइस. शुभम ने भी किया. हाँ, विंडो खोल के रखो, अच्छा लगता है. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. जो भी आपको पूछना है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, कोई भी मन में सवाल हो, एनी क्यूरियोसिटी. हेलो, कोई सवाल Yes. नहीं है? हाँ बोलो बेटा. सर सोच रहे सवाल. सौर्य, नो क्वेश्चन? Yes, sir, no questions. अरे यार, ये तो गड़बड़ है. फिर तो या तो मैं ढंग से नहीं समझा पाया इसलिए कोई सवाल नहीं है, या आपको पहले से सब कुछ मालूम है, कोई सवाल नहीं है. No, sir, जितना आपने अभी तक समझाया सर आया समझ. हाँ, तो उसी में और क्या चीज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जानना चाहिए? क्योंकि आप देखो, आप 2 साल पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, आप जो चीज मुझसे पूछेंगे ना उसका मैं आंसर दे पाऊंगा. अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक बुक देखी है? रेज योर हैंड्स आप. 1 2 3. बाकी लोगों ने बुक नहीं देखी? 4. ओके, 5. अच्छा, कंटेंट्स देखे हैं इसके? ओके, सर थोड़ा सा देखा था. ऑलराइट. तो उसके बारे में कुछ पूछना हो बताओ मुझे, क्योंकि अभी मैं आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा. सर ये जो मतलब पी सब्जेक्ट है सर, मतलब इसमें हम लोग बेसिकली बायो और उसके बारे में पढ़ेंगे ना सर, गेम्स के बारे में. सी, बायो के बारे में जब आप बात करते हैं तो इट ओनली गेट रेस्ट्रिक्टेड फिजियोलॉजिकल, बट व्हेन वी go in this physical education, we also understand that social impacts, emotional impacts, right? So sociology we will also study, then psychology also we will study, then physiology, anatomy, biomechanics. ये सारे के सारे पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है. इसमें बहुत सारी चीजें. अगर मान लीजिए बायोमैकेनिक्स, अब बायोमैकेनिक्स क्या है? व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? तो बायो मींस बॉडी, मैकेनिक्स मींस फिजिक्स, वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, हाउ दैट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. मान लीजिए सपोज फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन इस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ल्ड में, तो हम मूव कैसे कर रहे होते हैं? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो फिर हम कैसे वॉक कर रहे होते, मूव कैसे कर रहे होते? राइट. सो द प्रिंसिपल्स विच आर बेसिकली वर्किंग ओवर द बॉडी, हाउ दे वर्क, हाउ दे न्यूट्रलाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेज विच अप्लाइड ऑन द बॉडी, आवर बॉडी बैलेंस मेंटेन्ड. तो ये भी हिस्सा है. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, फिजिकल एजुकेशन केवल खेलना कूदना या हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है. इट इज मच मोर, इट इज मच मोर.
Yes, I hope I have made it clear. Yes, sir. Now sociology. Sociology is also the one part of this subject. Small section, a small part where you try to understand how that psychology plays an important role to be a better person. How you can motivate a student. How you can look after a person who is suffering with the anxiety or stress. How you can deal, how you can support emotionally to a person. So that kind of the all contents are there in the subjects. So biomechanics related with the physics, physiology related with the biology, then psychology related with your social and emotional aspects. और बताओ और क्या जानते हो? पूछोगे सवाल मैं जवाब दूंगा, बताओ जल्दी से क्या क्या पूछना है. Yes, Tanya. Sir, how physical education help us to develop leadership quality? All right, very good. Now, what the qualities of a good leader? कौन बताएगा मुझे एक क्वालिटी? ये जितने भी मौनी बाबा पर्दा डाल के बैठे हुए विंडो में, थोड़ा बोलो भाई, कुछ पार्टिसिपेट. हाँ, one quality of a good leader. Tanya. Sir, He should never give up. He should never give up. Okay, right. Yes, Tanya. सर बाकी टीम मेंबर्स से वो उसका अच्छा कम्युनिकेशन और सबको वो मैनेज कर पाए. Absolutely. Yes, Karthik. He should be able to motivate his teammates. Agreed. Yes, Eklavya. Sir, he should be focused to his target. Very nice. Agreed. Yes, Devanshi. सर वो सबको मिल के चले आगे. Very nice. Agreed. और कोई जितने मौनी बाबा बैठे हुए पीछे पर्दों में, प्लीज स्पीक अप. Now see, Tanya, these all qualities which you themselves have explained to me is all can be inculcated in a person. Now take an example of any game or any sports. Eklavya, listen carefully. You are playing a basketball match, right? A opponent's player falls down and he got injury. क्या करते हैं अपन लोग? सर हम लोग गेम रोकते हैं, फिर उसका कितनी चोट लगे उसको मतलब सर उठाते हैं जल्दी से पूछते हैं. Yes. Tanya, agreed? Yes, sir. Now what happens? This good qualities we have not taught on the ground. It is all lies within us. But what happens? That incident, it gives us that opportunity to help that. So in that way, the different qualities of a better leader can be developed with the help of sports. आप देखिए, आप स्पोर्ट्स डे करते हैं, 11th क्लास के बच्चे ज्यादातर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते थे, ये आपको मालूम है अच्छे से. अभी 2 साल से हम लोगों थोड़ा सा हॉल्ट पे है, तो उसमें ज्यादातर लीडरशिप का काम कौन कर रहा है? ग्राउंड मार्किंग, बच्चों को कंट्रोल करना है, वॉलंटियरशिप करना, ये सारी चीजें क्या हैं? इट इज द अपॉर्चुनिटी विच द चाइल्ड गेट्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स. So that is very important. So with the help of the sports, we can also develop good quality which a leader is needed. Very good question, Tanya. Very nice. Anybody else? Karthik Sharma, I can see. Laksh Prajapati. 9 others. 9 others कौन है? ये दिख क्यों नहीं रहे हैं मुझे? ओके, देखिए बोलना तो पड़ेगा यार. और कोई सवाल? अंजन. ऑल राइट. तो अब अभी आपके पास में कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए आपके पास. नंबर 1, मैं कल वापस से आपसे पूछूंगा ये चीजें. क्या पूछूंगा? वाई यू हैव टेकन फिजिकल एजुकेशन. एक अच्छा सा आंसर सर्च करके रखना है. आपको क्या करना है? आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और अवेयरनेस लानी है. मैं आपको फुल्ली मोटिवेट करके ही एंटर लाऊंगा अपने पास, जिससे फिर मजा आए. दूसरा कंडीशन, इस क्लास में इंटरेक्टिव रहना है. इसमें केवल टीचर बोलेगा ये काम नहीं चलेगा.
क्योंकि मैं आपको एक सब्जेक्ट टीचर के तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशंस। आपने भैया दीदी से पूछ लिया होगा, दैट आई नो, आपको बता दिया होगा सर तो हमको असाइनमेंट देते हैं और वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक छोटा सा टॉपिक देते हैं, उस पर हमको प्रेजेंट करना होता है। एग्रीड? आप ही को पार्टिसिपेट करना है, और until unless we participate in the class it cannot be a effective class। तो हमको इस क्लास को इफेक्टिव करने के लिए हमको एक्टिव करना पड़ेगा, है ना। क्लास को इफेक्टिव करने के लिए हमको अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, और जब एक्टिव कर लेंगे आप देखेंगे आप इंजॉय करेंगे और लर्निंग ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। एग्रीड? चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, और स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूं कि आपको कंटेंट्स के बारे में बताऊं। ऑलराइट, तो आई एम जस्ट नहीं मेरे, हाँ, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। राइट, मैंने कुछ लगा जमाया था यहाँ पे, कहाँ गया? Okay, no problem, no problem. What I will do, I will go to Google Drive. No, just a minute, right? जस्ट ए मिनट। हाँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा मैं एक चीज मुझे जो आपको दिखानी है आज, वो मैं जरा अपने पास से ले लूँ। है ड्राइव 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 माई ड्राइव ये रहा। Okay, now I will show you. I think you can see this book. Yes, sir. Yes, sir. What it is? What is written here? Physical education, class Class 11. 11, right? Now I am just going to give you this book online, right? So there is no need to worry, right? Now, Sir, you already given. yeah, I have given in the this mail itself, right? Yes, sir. So you can download that and just keep it with yourself. Now, this is the contents which we are having to study. Now, first chapter, that is called Changing Trends and Career in Physical Education. इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, अभी आपको केवल मैं ये चीजें दिखा रहा हूं, और फिर वन बाय वन मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि आपके कंटेंट्स क्या क्या है। तो चेंजिंग ट्रेंड्स मींस हाउ दैट फिजिकल एजुकेशन हैज बीन चेंज्ड विद द टाइम। ठीक है, पहले कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नाउ सी, मैं एक ही लाइन बोलता हूं उसमें, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, and how that I will explain you in the class, right? So in this meaning and definition, aim and objectives, career options, competition in various sports at national and international level, and Khelo India program, जो कि बहुत इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। फिर सेकंड चैप्टर इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस वेलनेस लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आ गई। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर children with special needs,
जो पहले जिनको हम विकलांग बोलते थे, नाउ द न्यू टर्म हैज बीन यूज्ड, दैट इज कॉल्ड दिव्यांग, राइट? So the people those who are suffering, or the people those who are having the different kind of the physical challenges or mental challenges, what kind of the activities can be given to them so that they should also feel the part of society or the normal life. Then the yoga, physical activities and leadership training, test and measurement and evaluation, ये सारे चैप्टर हैं आपके. फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये आपके क्या हैं, पूरे के पूरे कंटेंट्स हैं. ठीक है, और उसके बारे में मैं आपसे कब बात करूंगा? कल की क्लास में. ठीक है, अब अगर किसी को कुछ और मुझसे बात जाननी हो तो बता दें. बुक मैंने आपको दे दी है, इसको डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करके एक बार सारा का सारा डिटेल में चीजों को पढ़ लेना, और फिर आप कल से मुझसे इन सारे कंटेंट्स के बारे में, अभी मैं पढ़ाई शुरू नहीं कर रहा हूं, 2-3 दिन क्लास में केवल सब्जेक्ट के बारे में ही बात करूंगा. किसी को भी कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं, थ्योरी कितने मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होता है, थ्योरी के क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं, ये कंटेंट क्या है, जो भी आप पूछेंगे मुझसे वो आपको मैं यहाँ पे जवाब दूंगा. एंड वंस you get the holistic idea about this subject, then we will start our regular classes. अभी 2-3 क्लासेस में यही बात करेंगे. सब्जेक्ट, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पहले जानना है, और जानने के बाद में फिर हम इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. राइट? एनीथिंग एल्स which anybody wants to share or to speak or say? किसी को भी कुछ बात? सौर्य चौधरी, यार ये ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा. मेरी क्लासेस शांत नहीं रहती हैं. मेरी क्लास तो वाइब्रेंट रहती है. मैं यहां से अंदर आके थोड़ी पकड़ लूंगा आप लोगों को. ठीक है, बुक मैंने आपको दी है, अच्छे से उसको देखो. उसमें कोई भी आपका सवाल बनता है, राइट इट डाउन, एंड वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म. ऑलराइट? एनीथिंग एल्स? अपना ख्याल रखिएगा, और मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा. ठीक है, मम्मी पापा को स्ट्रेस नहीं देना है. ऐसी कोई काम हमको नहीं करने हैं जिससे कि हमारे पेरेंट्स दुखी हो, परेशान हो. वैसे आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, मुझे मालूम है, बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत छोटे से बड़ा किया है, देखा है ना? तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव रहना है. सोसाइटी इज फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द चैलेंजेस, एंड वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट बैक. एंड वेरी सून वी विल मीट इन द स्कूल. हो सकता है भविष्य में बहुत जल्दी हम लोग मिलें. अगर हम जिम्मेदारी के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी मिल भी पाएंगे. जो अभी फोटो में दिख रहे हैं ना, तो अलाइव होके देखेंगे साथ. ठीक है, और क्लास का एक प्रोग्राम भी बनाएंगे कि पहले 5-10 मिनट हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और उसके बाद में अपनी पढ़ाई शुरू करें. ठीक है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन द बिगनिंग इटसेल्फ एवरी डे विल वर्कआउट फॉर 5-10 मिनट्स, और उस वर्कआउट में आप ही लीडर होंगे, 1 by 1 आप लीडर होंगे. आप एक्सरसाइज कराएंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, सारे लोग करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या रहना है? फिट रहना है. और अगर हम फिट रहेंगे तो हम बेहतर तरीके से अपने चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे. एग्रीड? एग्रीड? चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. आज के लिए इतना काफी, आई थिंक. अच्छे से रहना है. बुक्स मैंने दे दी है आपको, अच्छे से उसकी स्टडी करो, सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो क्या है उसमें, और जो भी डाउट आता है, यू ऑलवेज फ्री टू आस्क रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. ऑलराइट? तो आज के लिए इतना ही काफी है, और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच. डू ज्वाइन टुमारो 9 o'clock विद द क्वेश्चंस. क्यूरियोसिटी होना जरूरी है. क्रिएट क्यों, until unless you start creating क्यों,
यू विल नॉट लर्न। ध्यान रखना। तो क्यों तो आपको करना ही है, वाई, और वाई को जितना जस्टिफाई मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। ठीक है एकलव्या? ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। साई राम। थैंक यू सर, साई राम सर। साई राम, Thank गॉड you. ब्लेस। Thank you, sir. Saram, sir. थैंक यू सर, साई राम। थैंक यू सर। साई राम।